बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Okay, Walaikum Salam. First year students have joined us. And I really appreciate the participation which is shown by the first year students during my lectures. All right, today we are going to discuss ulnar bone. Fine, I have already discussed certain upper limb bones with you, like scapula and radius. And today we are going to discuss ulna. Fine. Acha, can you tell me that upper limb is divided into how many components? जो upper limb है उसको हम उसकी हम divisions, anatomical divisions for the purpose of study जो हम करते हैं, what are those divisions? जी, let me see how many answers we have received here. जी, अपर लिम्ब को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं बेटा फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी? जी, सबके सलाम मेरे पास पहुंच गए हैं और फुरकान कादिर ने कोई 4 नंबर लिख के भेज दिया है जी। राइट, ठीक है जी। पेक्टोरल रीजन है आर्म, फोर आर्म एंड हैंड. Ikra has given the answer. Fine. So we have already covered the vessels, nerves, and the muscles which are present in the arm. Fine. Now we are going to discuss the bone of the arm. One of the bone we have already discussed, which is radius. And today we are going to discuss ulna. Fine. This is a bone of the forearm, and the pattern of the lecture would be that I am going to show you the 3D model of the bone, and I'm going to teach you the components of it, and then I'm going to ask certain basic, very basic questions which you must know while studying the bones, and I will be checking your previous knowledge as well as what you have gained from the lectures, and then afterwards we are going to discuss the things like muscle attachment of the bone, and also we are going to discuss the assessment component of this topic. ठीक है कि यानी कि आपको papers में, exams में, whether it is a practical exam or your written paper, what can be asked in your exams regarding this part. Okay, right. Okay, let's move to the अच्छा, these are all the bones of the upper limb which you study in first year. ठीक है, clavicle है, scapula है, humerus है, this is radius, and this is ulna. Fine. All right. सबसे पहले तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए
कि what is the first most important thing while studying the bone? जब भी आप कोई बोन पढ़ रहे होते हैं, कोई ह्यूमन बोन आप स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जी, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है while studying the bone? Yes, first year. What is the first most important thing? Yes, God. अहमद खान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और that is you have to keep the bone in the anatomical position. These are very basic questions. These are very conceptual questions and these are the must. ठीक है जी, अब मैं रिप्लाई कर रही हूँ और अहमद को राइट. Fine. And who else has given me the answer? Let's see. Yes, side determination comes next to it. First of all, you should keep the bone in the anatomical position. अब मसला ये है कि anatomical position का ही बहुत बड़ा मसला है कुछ बच्चों के लिए. So you are in first year, it can be a problem for you. So there is nothing to worry. I am here to teach you. ठीक है. ये है बेटा एक ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन. फाइन. एंड हाउ यू say that it is an anatomical position when a person is standing upright and seeing in a forward direction. ठीक है, जिसको हम कहते हैं towards the horizon, and the palms of the hand are facing forwards and the feet are pointed forwards, or you can say the tips of the fingers or toes are pointed forward. ठीक है. So this is an upright position जिसको हम anatomical position कहते हैं. अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि आपने बोन को anatomical position में रखना है? आपने सबसे पहले माइंड में बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन को लेकर आना है. ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. यू हैव गॉट अ ह्यूमन बॉडी, सो यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन योर ओन सेल्फ. जब भी आप वाइवा में बोन उठाएं या स्टडी करने के लिए आप बोन उठाएं, सबसे पहले आप उसको उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रख के देखें. ठीक है, जब आप उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रख के देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये कौन से साइड की बोन है. ठीक है. सो साइड डिटर्मिनेशन भी बोन को फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने से होती है. ठीक है. और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बॉडी का सुपीरियर और इंफीरियर कंपोनेंट. सो इसी तरह बोन का एक सुपीरियर एंड होता है, एक इंफीरियर एंड होता है, या आप कह लें एक प्रॉक्सिमल एंड होता है और एक डिस्टल एंड होता है. ठीक है. द बोन्स आर मोस्टली जो लॉन्ग बोन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में. तो बोन का भी प्रॉक्सिमल यानी कि अपर एंड होता है और डिस्टल एंड होता है. अब प्रॉक्सिमल एंड का क्या मतलब है कि वो एंड जो टूवर्ड अपवर्ड्स है, यानी कि टूवर्ड्स द हेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है. ठीक है, जो अपवर्ड है. और डिस्टल एंड का क्या मतलब है? जो कि टूवर्ड्स द फीट है. सो प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. और आपको किस तरीके से पता चलेंगे? जब आप इसकी बार बार रिपीट करेंगे, इसको रिविजन करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा. So let me show you the bone on the. अच्छा, अब ये जो आर्म है ये राइट साइड का है. दिस अपर लिम्ब इज ऑफ राइट साइड. सो एल्बो तक का एरिया जो है वो आर्म होगा. एल्बो से रिस्ट तक जो है वो फोर आर्म है एंड देन द रेस्ट ऑफ इट इज हैंड. फाइन. सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस इज रेडियस जो हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये लैटरली है. और जो अल्ना है इट इज मीडियल साइडेड बोन. ठीक है. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अपर एंड से अल्ना जो है इट इज आर्टिकुलेटिंग विद
joining with or forming a joined, forming a joint with the humerus, ठीक है, which is the bone of the arm, that is elbow joint. And at its lower aspect it is not contributing in the formation of any joint, यानी wrist joint की formation में जो अल्ना है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती। फाइन, और इसका रेडियस से थोड़ा सा उल्टा हिसाब किताब होता है। क्या उल्टा होता है? यहाँ पे आपने देखा था कि प्रॉक्सिमल एंड पे रेडियस का हेड था, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्टल एंड पे अल्ना का हेड है। फाइन, सो अब अल्ना आपने देख ली है कंबाइंड आर्टिकुलेटेड फॉर्म में। अब आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि रेडियस की अल्नर नॉच होती है, यहाँ पे वो अल्ना से आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेड है वो रेडियस के साथ ज्वाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ अ notch here which is present on the radius, and it is known as the ulnar notch of the radius, where the head of the ulna is going to articulate here, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस का हेड है वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है। सो अपर एंड ऑफ द अल्ना में देयर वुड बी अ नॉच विच विल बी नोन एज रेडियल नॉच, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्ना को आइसोलेट कर लेंगे। Okay. Okay, now we have isolated ulna. Okay, excuse me for a while. Okay, wait for 2 minutes. Okay, let's resume. Right, we can see here that we have isolated ulna, ठीक है। अल्ना को आइसोलेट करके हमने देखा कि इसका अल्ना का दिस इज द proximal end, or you can say this is the upper end. All right, this is the proximal end and this is the distal end. So this proximal end has got certain features. First of all, you must remember it with the help of an idea कि it is a beak like structure, ठीक है। जिस तरह चोंच होती है ना, खुली हुई चोंच, या आप अपने हैंड की इस तरह की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है आपको अल्ना का नज़र आता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का आपको स्ट्रक्चर अल्ना का नज़र आता है फ्रॉम द अपर एंड। सो अपर एंड हैज़ गॉट सर्टेन फीचर्स। सबसे पहले ये जो आपको एक स्ट्रक्चर प्रोसेस नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज ओलेक्ट्रेनॉन प्रोसेस, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज द ट्रोक्लियर नॉच। फाइन, this notch is the trochlear notch. This is the coronoid process. This is the radial notch which articulates with the radius. And this is the supinator crest.
So these are certain important features which you can see on the upper end of the ulna. First of all, this is the olecranon. Then we have got trochlear notch. This is the coronoid process. This is the radial notch of the ulna on which the radius, head of the radius articulates. And this is a crest-like structure which is known as supinator crest. Then we have got another structure here which is known as ulnar tuberosity, where certain muscles are attached. So I'm going to maximize this. Sorry. We are going to maximize this upper end or the proximal end of the ulna, and what you need to remember is that you are not going to say that it is head of the ulna. जो proximal end है, it is not the head of the ulna. ठीक है? So you can see here in a maximized form that this is the process which is olecranon process. This notch where the humerus is going to articulate with the ulna. This is known as trochlear notch. This is the coronoid process. This is the radial notch of the ulna and this is the supinator crest. ठीक है, और एक और चीज आपको नजर आ रही है और वो क्या है, ये है जी ulnar tuberosity. So you can see here that this is a bone which is present on the medial side of the forearm. So आप अपर एंड को देखते हुए इसका साइड किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं कि जो इसकी रेडियल नॉच है वो लैटरली होती है. ठीक है, इट इज टुवर्ड्स द रेडियस, इट इज फेसिंग लैटरली. So for side determination you have to keep this area towards the proximal aspect and you have to keep this radial notch towards the lateral aspect. और ये जो beak like area है, the trochlear notch, what you have to do is that you have to keep it in front anteriorly. ठीक है, anterior position में रखेंगे आप लोग. अच्छा जी, then we have to move towards its lower end. ठीक है, अब हम जाते हैं इसके अल्ना के lower end पे, and this is the lower end of ulna. At its lower end there are two important features. One is head of ulna and the second one is styloid process. ठीक है, there are two important features on the lower end of the ulna, or you can say at the distal end of the ulna. This is the head of ulna. ठीक है, head of ulna है, और this is known as the styloid process. So head of ulna, you have to keep this head towards the radius. ठीक है, और रेडियस के साथ मिल के, रेडियस के लोअर एंड के साथ मिल के जहाँ पे अल्नर नॉच होती है रेडियस की, इट फॉर्म्स रेडियो अल्नर जॉइंट. ठीक है, एट द लोअर एंड टुवर्ड्स द रिस्ट, head is going to form the inferior radio ulnar joint with the ulna. So these are the two important features at the lower end of the ulna. ठीक है, now we are going to come towards the shaft. अब shaft जो है उसमें क्या चीज़ है present? Shaft में we have got three borders and three surfaces. तीन borders हैं और तीन surfaces हैं. The lateral border is the interosseous border. ठीक है, बिकॉज ये जो है मीडियल साइड की बोन है तो इसका लैटरल बॉर्डर इंटरऑशियस बॉर्डर होगा एज कंपेयर टू रेडियस. जो रेडियस है उसका
मीडियल बॉर्डर जो है वो इंटरऑशियस बॉर्डर है. So medial border of radius and lateral border of ulna are interosseous where the interosseous membrane is attached. So one border is the lateral border, the other border is the anterior border and the third one is the posterior border. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं this is the posterior border. ऑल राइट. और आप ये देख सकते हैं कि इसका पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से है, जो इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस है उसके बैक साइड से लेकर स्टाइलॉइड प्रोसेस तक इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जा रहा है. ठीक है. Then this is the interosseous border which is sharp enough. You can see here this is the interosseous border and towards the lower end it is towards the head of the ulna and also towards the supinator crest. और फिर हम यहाँ देखते हैं दिस बॉर्डर इज द एंटीरियर बॉर्डर. ठीक है, जो कि कोरोनॉइड प्रोसेस के नीचे आ रहा है. दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. सो एंटीरियर बॉर्डर, ये जो एंटीरियर बॉर्डर है और ये इंटरऑशियस बॉर्डर है, इन दोनों के दरमियान जो सरफेस होगी इट वुड बी द एंटीरियर सरफेस. ठीक है, फिर एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान जो इसकी सरफेस है वो मीडियल सरफेस है. ठीक है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरऑशियस बॉर्डर के दरमियान की सरफेस है वो क्या है, दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस. ठीक है, ऑल राइट, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. So this is all about the bony features of the ulna, the gross bony features, the important bony features, what you need to remember in your viva while गिविंग वाइवा फॉर द बोन ऑफ अल्ना. ठीक है, अगर सबसे पहले आपको क्या कहा जाता है, कुछ टीचर्स आपसे ये कहते हैं कि आप के सामने बोन्स पड़ी हैं, आपने जो बोन पड़ी है वो आप उठा लें. ठीक है, कुछ पॉइंट आउट करते हैं कि ओके बेटा इसमें से अल्ना को पिक कर लें. सो अगर आपने उसको देखा होगा, उसके फीचर्स आपने पढ़े होंगे तो वो आप बताएंगे. सबसे पहली बात ये कि आपने बताना है कि ये अपर लिम्ब की बोन है. ठीक है, फिर आपने ये बताना है कि मे बी द टीचर इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस. अब आपका से इम्पोर्टेंट बात ये है वाइवा के लिए कि जितना आपसे पूछा जाता है ना आप लोग उतना बताया करें. आपसे एक बात पूछी जाती है तो आप उसकी कहानी ही बताने लग जाते हैं. आपसे एक बात पूछी गई आप उसका जवाब दें. फॉर एग्जांपल ये कौन सी बोन है, कौन से लिम्ब की, ये अपर लिम्ब की बोन है. ओके, देन यू आर गोइंग टू डिटर्मिन इट्स साइड. अगर टीचर ने आपको साइड पूछा, ये नहीं कि बस आपने उस बोन को उठा के उसकी कहानी छेड़ ही देनी है. हाँ, अगर आपको आ रही है तो आप एक आधी बात और कर दें, ये नहीं कि अब उसकी अब. हाँ, अगर टीचर आपसे ये पूछते हैं कि आप बताएं इसके बारे में, और बताएं और बताएं और बताएं, तो तब आप बताएं. ठीक है, अच्छा उसके बाद वी हैव गॉट, आपने क्या बताना है, साइड की डिटर्मिनेशन किस तरीके से करनी है. इसका ये जो अपर बीक लाइक स्ट्रक्चर है वो आपने प्रॉक्सिमली रखना है और आपने जो इसका डिस्टल हेड और स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो आपने डिस्टली रखना है. ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ रखना है. और फिर आपने इसका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है और इलेक्ट्रोनॉन यानी कि जो ओपनिंग है बीक की वो आपने एंटीरियरली रखनी है. सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू इजीली डिटरमिन इट्स साइड. और ये जो रेडियल नॉच है, ये वाली स्ट्रक्चर वो आपने लैटरली रखना है तो आराम से इसकी साइड डिटरमिन हो जाएगी. ये राइट साइड की भून है. ठीक है, अच्छा ओके, लेट अस मूव टू द प्रेजेंटेशन नाउ. अच्छा जी, इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि व्हाट आर द थ्री मेन हेडिंग्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल स्टडिंग अ बोन. यानी कि किन तीन कंपोनेंट्स में, किन तीन हेडिंग्स पे आपने एक लॉन्ग बोन को स्टडी करना है.
जी, लेट्स सी। अच्छा, फुरकान ने इधर क्वेश्चन पूछा भी है कि upper end of, no beta, I have repeatedly told you that the lower end of the halna is its head. ओके, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि किन तीन मेन हेडिंग्स के अंडर आप एक लॉन्ग लॉन्ग बोन को स्टडी करेंगे। ऑल राइट, एक्सीलेंट ईमान। फर्स्ट आंसर जो है वो ईमान की तरफ से मुझे आया है, और कासिम की तरफ से भी आया है, बट मैं all right, good. So the new students have also picked up the pace. जी, आप ये भी कह सकते हैं कि अपर एंड, लोअर एंड और शैफ्ट, या फिर प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड और शैफ्ट, यानी कि ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने याद रखने हैं, और आपके लिए बोन जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल आपने अपर एंड, शैफ्ट, लोअर एंड, या अपर एंड को आप प्रॉक्सिमल एंड भी कह सकते हैं, और लोअर एंड को आप डिस्टल एंड भी कह सकते हैं। और शैफ्ट के अंदर आपने क्या याद रखना होता है? शैफ्ट के अंदर आपने उसके सर्फेसेस और बॉर्डर्स याद रखने हैं। अब अल्ना क्या चीज़ है जी? अल्ना एक इम्पॉर्टेंट बोन इसलिए है बिकॉज इट इज़ अ स्टेबलाइजिंग बोन ऑफ फोर आर्म, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो इसकी जो ट्रोक्लियर नॉच है वो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेती है, and it provides a foundation, a stable foundation for the radius to move and perform important movements like pronation and supination. ठीक है, अब इसी तरीके से अल्ना जो है एक लॉन्ग बोन है, फोर आर्म की बोन है। हम इसको अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड की फॉर्म में पढ़ेंगे। अपर एंड तक मैंने आपको फीचर्स बता दिए जो कि आप पिक्चर्स में इस तरीके से देखते हैं, और लोअर एंड जहाँ पे हेड होता है उसके भी फीचर्स मैंने आपको बता दिए। सो अल्लाह को भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। अपर एंड के मैंने आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए। देयर इज एन इलेक्ट्रोनॉन, कोरोनॉइड, ट्रॉक्लियर एंड रेडियल नॉचेस, ठीक है। इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, वी हैव गॉट ट्रॉक्लियर नॉच, and we have got this C-shaped structure is the trochlear notch, and we have got this structure which is known as radial notch for accommodating the head of the radius, ठीक है। Okay, then shaft has got three borders and three surfaces. We have got three borders like anterior, posterior, and interosseous. The interosseous border here is the lateral border in case of ulna, ठीक है। And we have got anterior, posterior, and medial surfaces of ulna. And at the lower end, we have got a styloid process and head of ulna. ठीक है? All right. So here you can see its upper end, the beak-like structure. एंड व्हाट इज़ द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस? अल्लाह का जो इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस है वो इन किसी भी जगहों से जो है फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग अ फॉल, बिकॉज ये एल्बो में सबक्यूटेन, जब आप अपनी फोर आर्म को फ्लेक्स करते हैं तो जो एल्बो में फील होता है आपको स्ट्रक्चर, दिस इज़ एक्चुअली द वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, एंड वेन एवर अ पर्सन फॉल्स तो वो ज़्यादातर अपनी एल्बो से सपोर्ट ले लेता है। और ये जो इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस है इट इज़ कॉमनली फ्रैक्चर्ड। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बल्कि फर्स्ट ईयर में मोस्टली स्टूडेंट्स जिनके फैमिली या कुछ इस तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही होती, उनको ये टेंशन होने लगती है कि हम डॉक्टर बनने के लिए आए हैं तो हम बोन्स क्यों पढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो बोन्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, उसके कंपोनेंट्स का पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्जरी में, या आप कह लें कि इन केसेस ऑफ फ्रैक्चर्स
जब आप रेडियोलॉजिकल एक्सरेज देखते हैं, अगर आपने बोन्स ही नहीं पड़ी हुई, उनके कंपोनेंट्स ही नहीं आपको आते, तो आप बिल्कुल भी इस फीचर को, इनके स्ट्रक्चर्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, ऑब्वियसली आपको एक्सरे रीड करने के लिए स्पेशलाइज करने की, मतलब एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट बनने की ज़रूरत होती है, लेकिन बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड कि आप MBBS कर रहे हैं, विच इज़ दैट यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आपको हम स्पेशलाइज नहीं करा रहे किसी भी चीज़ में, हम आपको बेसिक बता रहे हैं। सो बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। द फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। ठीक है, तो बोन्स पढ़ने से ना घबराया करें। डोंट बी फेयर अबाउट के बोन्स क्यों पढ़नी है, हम तो डॉक्टर बनने आए हैं। मेडिसिन इज़ या डॉक्टर बनने का रिलेशन जो है, इट इज़ नॉट लाइक कि आप सिर्फ मेडिसिन लिख कर देंगे या किसी बीमारी का आपको पता चल जाएगा तो आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, सो MBBS इज़ कंसर्न विद गिविंग यू बेसिक्स फॉर एवरी फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जो डॉक्टर बनने के लिए जो बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं, वो सब आपको MBBS में पढ़ाई जाती हैं। एंड एनाटमी इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? ऑल राइट, लेट्स सी हेयर कि यहाँ पर जो मसल्स हैं वो कौन कौन से अटैच्ड हैं। यू कैन सी हेयर दैट on the ulna we have got muscles like pronator, we have got flexor pollicis longus, we have got a huge attachment for flexor digitorum profundus, and we have pronator quadratus here. Okay, this is the anterior aspect, and posteriorly there are also several muscles attached here, like profundus muscle, extensor carpi muscles. So as you go on and study the muscles, आपको आराम से जो है वो बोन की कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स याद हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं असेसमेंट कंपोनेंट पे। असेसमेंट में बोन आपसे ज़्यादातर वाइवा में पूछी जाती है और आपकी ऑस्फी में, विच इज़ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो वाइवा में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से इधर लेक्चर में बता दिया है किस तरीके से आपको बोन्स पूछी जाती हैं। दूसरी बात ये है कि आपसे जो बोन्स हैं वो पूछी जाती हैं जनाब ऑन द ऑस्पी स्टेशन। अब होता क्या है कि जिस तरीके से मैंने आपको बोन दिखाई है, उस तरीके से कोई भी मेथड हो सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट का। वी यूजली अप्लाई इट एज ABCD, हम मार्किंग अप्लाई करते हैं और हम क्वेश्चन लिखते हैं कि नेम द पार्ट A, नेम द पार्ट B। फॉर एग्जांपल ओके, वी मूव टूवर्ड्स द एटलस। फॉर एग्जांपल अगर ये वाले स्ट्रक्चर पे मैंने पार्ट A लगाया है, ठीक है, A लिख के लगाया है, तो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन लाइक लेबल द पार्ट A। तो A पे आप लिखेंगे कि दिस इज द अल्नर ट्यूबरोसिटी, एंड मे बी द नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी लाइक के नेम द मसल अटैच्ड ओवर दिस अल्नर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, या फिर इस कंपोनेंट के ऊपर लगाया हुआ है तो यू वुड से दैट दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। ओके, या फिर बोन राइट या लेफ्ट साइड की रखी गई है तो वी कैन ऑल्सो से दैट डिटर्मिन द साइड ऑफ द बोन। किसी बॉर्डर पे लगाए हुए एंड आपको पूछा जा सकता है। रेडियल नॉच पे लगाया, फॉर एग्जांपल C लगाया हुआ है रेडियल नॉच पे, एंड वी आर गोइंग टू आस्क द लेबल C, सो यू आर गोइंग टू राइट रेडियल नॉच। जिसने पढ़ा हुआ होता है वो फौरन फौरन से जल्दी जल्दी कर लेता है। ठीक है, नाउ इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, so you can ask here. जी बेटा। ओके, आई हैव रिपीटेडली टोल्ड यू पीपल कि अगर आपके कुछ वीडियोस में या मसाइल आ रहे हैं तो आप पहले अपना कंपोनेंट चेक करें बिफोर पोस्टिंग दिस टू द कमेंट्स, बिकॉज डोंट डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स। आप अपने एंड पे अपने सिस्टम को चेक कीजिए।
Maybe this is the fault of your network or your system. ठीक है? All right, everything is clear to you? Okay, आज मुझे participation नहीं नज़र आ रही जी. Those students who are actively participating previously. हाँ जी, कहाँ हैं जी आपके students like where is Adil and where is Mohib, where is Usman, your CR? Okay, and where is Ramal, Lareb, and Khunsha, Haris? Okay, all right. Still, if there is any question, anything which is not clear, हाँ जी, आ गए जनाब आदिल. जी आदिल, everything is clear to you? Still, if there is any question, any query, you people are welcome to ask. ओके, सब इधर ही हैं और सबको समझ आ गई है. All right, all of you have learned the bone. बोन्स आर नॉट डिफ़िकल्ट. जब आप अपने सर पे ये चढ़ा लेते हैं कि बोन्स बहुत डिफ़िकल्ट है, तो फिर आपको वो चीज़ मुश्किल लगने लगती है. बोन्स आर नॉट डिफ़िकल्ट एंड you have got several tools now, several applications through which you can easily study them. Fawad, can we have this 3D means क्या आपका वाइवा में आप पूछ रहे हैं? वाइवा में बेटा अगर आपका ऑन कैंपस होता है वाइवा, तो आपको बोन ही पकड़ाई जाती है. Okay, is there any question or we should have a goodbye session? Okay, all right. Um, all right, okay. Okay. Okay, beta. Allah Hafiz. Thank you very much for your active participation and stay in good health, stay blessed, stay safe. Okay, Allah Hafiz.